Hello friends, welcome to my YouTube channel ISME ISMAE. So today we are going to start this season of HVAC system. HVAC system including your designing and drafting, and today is the first episode. Today is the first module. Today this first class of this segment of this season. सो यहाँ पर टोटल लगभग 30 के आसपास मॉड्यूल्स होंगे. इसमें हम लोग कवर करेंगे कंप्लीट डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग एचवैक सिस्टम. ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश बोथ विल बी मीडियम्स, बिकॉज बहुत सारी इस तरह की रिक्वेस्ट आती हैं कि सर जो वीडियोस हैं दैट शुड बी इन हिंदी, सो दैट मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम engineers can view that videos. So ये जो वीडियो है it is very compatible to all the HVAC engineers, air conditioning engineers, managers, all the professionals are working, and no doubt obviously freshers. So we are just going to start this first episode of this season, designing and drafting of HVAC system. So सबसे पहले हम लोग overview देख लेते हैं. Language is not a barrier at all, so I will try to use my Hindi as well as English, both the languages, so mix, no problem. Okay, so in this first module, designing and drafting of HVAC system, इसमें हम लोग डिस्कस क्या करेंगे उससे पहले एक ओवरव्यू. Friends, my name is Lalit Singh Parmar. My educational, I completed my PG, my master's in mechanical engineering. My total experience, that is more than 12 years in industry. Also did my master's in management from IMT Ghaziabad. At the same time, my PhD also, that is carrying on, as I mentioned, from Galgodia University. And that is also specialized in HVAC system. Okay, this program, this whole season, this series, जिसकी एक एक करके बहुत सारे एपिसोड्स आपके सामने आएंगे, बहुत सारी क्लासेस आएंगी, और डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे आप रिवर्ट करते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ व्यूअर्स, ऑफ माय फ्रेंड्स. सो ये ऑर्गेनाइज है थ्रू इसमें इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स. सो हम इसको स्टार्ट करते हैं. यस, ट्रेनिंग मॉड्यूल 1, कंटेंट्स. इसमें क्या क्या हमारे कंटेंट्स होंगे, हम एक बार उनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं. कंटेंट्स हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग जनरली करेंगे. व्हाट इज एमईपी एंड इट्स स्कोप, व्हाट इज डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग एचवैक सिस्टम का, हाउ एचवैक इज एग्जीक्यूटेड इन इंडस्ट्री. स्कोप क्या है, मीन्स अगर सपोज यू कंप्लीट दिस एंटायर कोर्स, so what is the scope, where are those industries where you can establish yourself. So no doubt it's a new industry, but it is highly in demand, not in our country only, even all over the world, not in Gulf only, even up to the countries where temperature conditions are really very challenging, like your Canada, your all countries where temperature is less than 0 degrees centigrade, and as well all the countries where temperature is more than 40 45, like your UAE, KSA, Oman, Qatar, and all these countries, no doubt in India also. नेक्स्ट विल बी योर व्हाट इज हीटिंग, कूलिंग एंड वेंटिलेशन. हम लोग जनरली स्टार्ट करेंगे, हम थोड़ा और भी उस चीज का देखेंगे. एंड इन द लास्ट, एप्लीकेशंस ऑफ योर एचवैक सिस्टम्स. ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे. अब हम लोग चलते हैं इसमें आगे. इंट्रोडक्शन टू HVAC. HVAC, HVAC, डोंट बी कंफ्यूज हियर. इसको कई बार हम लोग HVAC भी बोल देते हैं एंड HVAC ऑल्सो, और कई बार ये HVAC R भी बोला जाता है. R मीन्स दैट इज रेफ्रिजरेशन. अभी मैं आपको HVAC और R के बारे में मैं आपको बताऊंगा. ओके, सो HVAC, it stands for heating, ventilation and air conditioning. Sometimes one
another alphabet is being used here in the form of R, that is called refrigeration. Okay, so HVAC, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग. सो सबसे पहले देख लेते हैं कि हीटिंग किसको कहते हैं. हीटिंग, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और हीट इज कॉल्ड हीटिंग. सपोज करो हमारे पास में एक बाउल है, एंड थ्रू दिस बर्नर we give some temperature to this burner where liquid is poured inside of this bowl, and initial temperature that was around 30 degree. हम लोग मान लेते हैं that was 30 degree. 30 degree initial temperature, that was 30 degree. Okay, 30 degree centigrade. Okay, after some time, when continuously we are giving this temperature to this bowl, after some time it will increase up to 40 degree, maybe 50 degree. Okay, suppose this is 40 degree centigrade. So यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है टेम्परेचर का. टेम्परेचर इंक्रीमेंट कैसे हुआ है कि हम लोगों ने हीट सिंक के थ्रू हम लोगों ने इसको हीट प्रोवाइड किया है. सो लिक्विड का जो टेम्परेचर है इनिशियली दैट वाज 30, आफ्टर सम टाइम इट इज 40 डिग्री. सो 10 डिग्री का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर. तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हीटिंग. व्हेन टेम्परेचर इज बीइंग इंक्रीज्ड, दैट इज कॉल्ड हीटिंग. फ्रेंड्स, इसमें कोई भी आपको डाउट रहेगा तो बाद में आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं आप इसको. Next is your cooling, same as was your heating. Cooling, just this is process of lowering or cooling the temperature. Heat is called cooling. अब सपोज करो कि वो जो सिंक था यहाँ पर हम लोग उसको रिमूव कर देते हैं. हम लोगों ने रिमूव किया है यहाँ पर. सो इनिशियल टेम्परेचर क्या था हमारा यहाँ पर 40 डिग्री. हम लोग मान लेते हैं 40 डिग्री. कुछ समय के बाद में कितना होगा 30 डिग्री. ओके, सो क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है बिकॉज वी आर नॉट एडिंग एनी काइंड ऑफ सिंक. वी continuously not giving any heat source to that liquid which is poured inside a bowl. Okay, so that process is called cooling. टेम्परेचर जब लोअर डाउन होता है उसको हम लोग कूलिंग बोलते हैं. ओके, next is your ventilation. Ventilation, what is that? It is nothing but ventilation is the process of replacing air to any space for the purpose of providing high indoor air quality. हम लोग क्या करते हैं कि फ्रेश एयर सप्लाई करते हैं जनरली. जैसे कि हम लोग अपने घरों में हम लोग देखते हैं कि बड़ी ह्यूमिडिटी हम जब फील होती है रूम्स के अंदर, बड़ी उमस हो जाती है, स्पेशली गर्मी के मौसम में. ये जब बारिश का सीजन स्टार्ट होता है, रेन का सीजन स्टार्ट होता है, उस टाइम तो जो उमस है, उमस मीन्स दैट ह्यूमिडिटी वेयर वाटर वेपर मोलिक्यूल्स आर एडेड विद द एयर. सो उसमें क्या होता है कि वाटर का जो जो कंटेंट्स हैं वो एयर के साथ में बढ़ जाते हैं, तो उसको हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं. इसके बारे में हम लोग आगे कुछ स्लाइड्स में हम लोग अपनी डिस्कस करेंगे. सो दिस वेंटिलेशन जनरली इट इज यूज्ड टू रिमूव दीज पैरामीटर्स. कौन से वो पैरामीटर्स हैं? अनप्लेजेंट स्मेल, लाइक योर किचन. किचन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक फैन लगा देते हैं, इसमें एग्जॉस्ट फैन जिसको हम लोग बोलते हैं. सपोज यहाँ पर हम लोग ऐसे एक एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं, और जब एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं तो क्या होता है, अंदर का जो मेरा प्रेशर है वो नेगेटिव प्रेशर मेंटेन होता है. क्यों? क्योंकि एयर सक करेगा, बाहर की तरफ थ्रस्ट करेगा. तो नेगेटिव प्रेशर है यहाँ पर, तो क्या होगा, बाहर से अगर यहाँ पर कोई डोर लगा हुआ है तो डोर से एयर क्या करेगी, डोर बाहर से अंदर की तरफ उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए दिस एक्सटर्नल एयर, आउटसाइड एयर विल ट्राई टू कम
it will intuit to come inside of this cabin, inside of this, suppose if it is kitchen. Okay, so that air will be fresh air. ये जो बाहर से एयर आ रही है, ये वाली मेरी, सपोज करो ये मेरी फ्रेश एयर. आई होप यू आर गेटिंग, दिस इज माई फ्रेश एयर. ओके, और यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से हम लोग इसको एडजस्ट कर रहे हैं. सो वेंटिलेशन क्या है, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सप्लाइंग ऑफ फ्रेश एयर and as well removing of stale air, contaminated air and foul air, sometime we call it, that is ventilation. ये यहाँ पर हम लोग फ्रेश एयर दे रहे हैं, ये मेरा कोई रूम है, यहाँ के थ्रू हम लोग वेंटिलेशन दे रहे हैं और यहाँ से हम लोग इसको एडजस्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं. तो ये प्रोसेस वेयर वी सप्लाई फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड एज वेल वी रिमूव that stale air, that foul air, that contaminated air from the space is called ventilation. Friends, I hope you understand. अगर फिर भी उसके बाद भी कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं. एज वेल यू कैन लाइक, यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन शेयर these videos. So जो बेनिफिट आपको है, मैक्सिमम पीपल कैन टेक दिस बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो. और ये जो प्रोसेस है आपका लाइक करने का, इट विल टेक हार्डली 1 or 2 seconds. Actually it takes a lot of time because all people are working, like I'm working. After that also I try to save some my precious time from my work. उसके बाद हम वीडियो पर बैठते हैं. So I just need your one like, your subscribe, so that maximum people, maybe this video might be reachable. Okay, so आफ्टर वेंटिलेशन हम लोग देख लेते हैं कितने टाइप्स के वेंटिलेशन होते हैं. जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन, नेचुरल एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन. व्हाट इज नेचुरल वेंटिलेशन? नेचुरल वेंटिलेशन मींस हम जो अपने घरों में यूज करते थे, पुराने टाइप की जो बिल्डिंग्स होती थी, पुरानी जो अपने घरों में, अपने गांव में आपने देखी होंगी कि ये जो बिल्डिंग्स हैं पुरानी टाइप की, तो इसमें कैसे है, पुरानी बिल्डिंग्स का जो हाइट होता था वो नॉर्मल से काफी ज्यादा होता था. नॉर्मल से मींस नॉर्मल हाइट ऑफ ए फ्लोर नाउडेज दैट इज अराउंड 3 meters ओनली, 10 feet around of this. Sometimes it is more than 10 feet, maybe 12. लग्जरी फ्लैट्स के लिए जैसे 12, कुछ बिल्डर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, दे डिजाइन ऑन 12 feet ऑल्सो, 12.5 feet ऑल्सो. बट जो स्टैंडर्ड हाइट है दैट इज 10 feet ओनली, दैट इज 3 meters. पुराने जो घर होते थे वो नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा हाइट होती थी उनकी, और उसमें हम लोग क्या करते थे कि हम लोग ओपनिंग्स करते थे उसके अंदर. ओपनिंग्स कैसे कि फ्रेश एयर के लिए, यहां से फ्रेश एयर, सपोज करो फ्रेश एयर जा रही है, और इसी में ऑप्शन रहता था बगल में या साइड में कहीं भी किस चीज का, एयर पास होने के लिए, जो स्टेल एयर है वो पास हो जाए, सो दैट जो वेंटिलेशन है बिल्डिंग का, दैट is maintained throughout this process. Second हमारा है mechanical ventilation. Mechanical ventilation nowadays, this is a very popular term, is being used even in your basements, in your area which is non, which is not air conditioning space. We use this mechanical ventilation. हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोग बड़े बड़े फैंस लगाते हैं, एंड फैंस के थ्रू हम लोग फैन एंड मोटर दैट इज कपल्ड, हम लोग एयर को एक्सट्रैक्ट करते हैं. इनसाइड एयर को हम लोग यहाँ से देखेंगे कि क्या करेंगे, फैंस लगे रहेंगे, यहाँ से क्या है, एयर को सक होगी, और इसके थ्रू यहाँ, ये मेरा मेन डक्ट है, यहाँ पर ये मेरी राउंड डक्ट है, ये मेन डक्ट है, यहाँ से सक हुआ, यहाँ से सक हुआ, और यहाँ से इस तरीके से ये सारी एयर एक्सट्रैक्ट होगी बिल्डिंग के बाहर जाके. यहाँ से भी ऐसे ही ये एयर, ये मैकेनिकल वेंटिलेशन भी कई टाइप्स के होते हैं. कुछ होते हैं कि हम सप्लाई भी देते हैं, एक्सट्रैक्ट भी करते हैं. कुछ होता है कि हम सिर्फ इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. अब जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किचन वाले एग्जाम्पल में देखा था कि अगर हम इस एयर को, दिस कंटेमिनेटेड एयर, जो मेरी स्टेल एयर है किसी भी बेसमेंट के अंदर सपोज, या किसी बिल्डिंग के अंदर, अगर मैं इसको रिमूव करता हूं तो ऑटोमेटिकली एयर को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, सप्लाई एयर विल कम फ्रॉम अनदर ओपनिंग्स. हम उसके लिए यहाँ कुछ ओपनिंग्स रखते हैं, तो वहां से ऑटोमेटिकली जो फ्रेश एयर है स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि उस बिल्डिंग का जो
जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर बना रहता है. ओके, स्मेल्स नहीं होंगी, humidification that will be proper, no more water vapor molecules will be available inside of that space. Okay, so this is our mechanical ventilation. I hope this is also clear to all of my friends. And after that also, if it is not clear, so you can write in comments. uh, I mentioned my WhatsApp number also as well. If you face any kind of challenge, ये जो entire series है, इसमें हम लोग डिजाइनिंग करेंगे हर एक चीज का, हर एक योर डक्ट्स, योर सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स, हीट लोड कैलकुलेशंस, कितने टाइप्स के एयर कंडीशन सिस्टम्स होते हैं, कूलिंग टावर्स, कमीशनिंग, कंप्लीट प्रोसेस. नथिंग इज विल बी स्किप फ्रॉम दिस सीजन. सो इट वाज. अभी हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं. ओके, सो दिस इज योर, just check off all these signs like right. Okay, so what is MEP and its scope? MEP, that is a very popular term, is used in industry nowadays all over the world. Okay, somewhere in some countries like in Europe, some countries of Europe, I saw over there कि MEP को हम लोग बिल्डिंग सर्विसेज इंजीनियरिंग के नाम से, BSE के नाम से भी जानते हैं हम लोग, बट जनरली जो टर्म है MEP. MEP means what? That is mechanical, electrical and plumbing. Mechanical means HVAC and your firefighting. So ये एक कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की सभी सर्विसेज का. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन के बाद में जो भी सर्विसेज हम लोग बिल्डिंग को देते हैं, हम जो सर्विसेज अडोन कराते हैं उस बिल्डिंग को, दैट इज योर MEP. All the services come under MEP services. ये बहुत डिमांड में है फ्रेंड्स, ये जो सेगमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, एंड हाईली डिमांड में है आज के, बहुत पॉपुलरिटी है इसकी. ओके, सो दिस MEP, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग engineering is an important and ever expanding part of the construction industry. MEP engineer plays a critical role in a project's ultimate success, no doubt. Like your Burj Khalifa, there is a big story behind of Burj Khalifa's MEP work. I saw that. I personally visited over there actually. हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे. अगर आप लोग कमेंट में डालेंगे कि MEP का कंप्लीट उसके डिजाइनिंग, चैलेंजेस, ऑब्जेक्टिव्स, तो हम लोग फ्रेंड्स उसके ऊपर भी बात करेंगे. और बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं इसके अलावा भी, जैसे दुबई के अंदर, UAE के अंदर बुर्ज खलीफा, नो डाउट दैट इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, around 828 meters. That is the height of that building. But maybe after 1 year, you will get a new building in the same locality, in the same vicinity, that might be around 5 to 10 kilometers far from Burj Khalifa. That is another building. Okay, so वो वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग होने वाली है. वो दुबई के अंदर ही बन रही है, अभी काम चल रहा है उसके ऊपर. So they are responsible for more than simply the design, installation, implementation of mechanical, electrical and plumbing services. तो ये हमारा MEP है. HVAC जो है, that is an integral part of MEP. MEP के अंडर ही HVAC आता है. इसमें बहुत सारे लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि MEP क्या है, HVAC सिस्टम क्या है. So don't be confused friends. HVAC MEP का ही एक पार्ट है. अच्छा है अगर if your perfection is there in MEP, if you are good in HVAC, no doubt, that's fabulous. But अगर MEP के अंदर है, सोने पर सुहागा, बहुत अच्छी बात है. What is designing and drafting? हम लोग जो कवर करेंगे HVAC सिस्टम का, उसका डिजाइनिंग. So like we know that HVAC stand for heating, ventilation, air conditioning. The principles of HVAC design include the basic theory of system operation and the factor that determine the size, capacity of the equipment, installation of the in the system. HVAC के अंदर हम लोग सिंपल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग डक डिजाइन पर जाएंगे. हम लोग अगले कुछ क्लासेस में, अगले कुछ मॉड्यूल्स में 1 by 1 कंप्लीट स्टडी करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे. उसके बाद
वेरियस मेथड्स हैं डक्ट डिजाइनिंग करने के। उसके बाद आपका पाइप डिजाइनिंग, सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स, उसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ पाइप्स, असेंबलिंग, उसके बाद commissioning, and then the last process that is handing over to the client. ओके उसके लिए भी कोई डॉक्यूमेंटेशन होता है, अगर आप कहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा, बट इन द एंड कंप्लीट डिजाइनिंग हम लोग कंप्लीट करने के बाद में डिजाइनिंग के साथ में ड्राफ्टिंग भी होता है। ड्राफ्टिंग दैट इज नथिंग बट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजाइन थ्रू ऑटोकैड, सॉलिड्स, रेविट MEP एंड मैनी मोर सॉफ्टवेयर्स are being used in industry, but most popular is your AutoCAD, Revit MEP, and SolidWorks. These are only okay. So next is your how HVAC is executed. एग्जीक्यूशन के बारे में हम लोग ये हमारा मॉड्यूल आएगा, बट एक और भी हम लोग देख लेते हैं कि HVAC सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस हैं। सपोज यू आर इन इंडिया एंड you have a responsibility of execution this HVAC system. So specifications, there are from CPWD, there are NBC, there are GREHA, there are so many other societies, ISHRAE, ASHRAE, SMACNA, DW144, like so many specifications are there. तो उन सब के बारे में भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे और बहुत इजी लैंग्वेज में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके सो यहाँ पर जैसे कि कुछ सोसाइटीज़ के नाम मैंने मेंशन किए हुए हैं जहाँ से गाइडलाइंस आती है, कंप्लीट गाइडलाइंस एक्चुअली जो हम लोग फॉलो करते हैं डिजाइनिंग के लिए, हम लोग इंस्टॉलेशन के लिए, हम लोग कमीशनिंग के लिए, हर चीज़ के लिए, लाइक ASHRAE. सो ASHRAE, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। ISHRAE अमेरिका के सिक्वेंशियली ये इंडिया में जो पॉपुलर है वो ISHRAE है। तो जनरली हम बहुत सारे जो डेटाज हैं वो ISHRAE की बुक से हम लोग लेते हैं। यहाँ पर इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। SMACNA, these are the guidelines and specifications for ducting work. Sheet metal and air conditioning contractors national association, DW144. So duct work 144. It is a comprehensive reference work recognized as a standard specification for ducting, manufacture and installations. Okay friends, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, सिर्फ हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग स्कोप की बात करते हैं। सपोज दिस एंटायर कोर्स, एंटायर सीजन विच इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, you have completed. So after completion this course designing and drafting, so what are the scopes in HVAC industry? कंप्लीट करने के बाद में आप लोग जा सकते हैं सेल्स परचेज के लिए, बहुत सारी जॉब्स होती हैं नो डाउट, बिलिंग के लिए, डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग विच इज़ द बैकबोन ऑफ द सिस्टम। इवन डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग एक अलग से कोई मॉड्यूल नहीं है, ये बैकबोन है पूरी इंडस्ट्री का। अगर आप बिलिंग में हैं उसके बाद भी डिजाइनिंग में आप अच्छे हैं, आप ड्राफ्टिंग में अच्छे हैं, सो दैट्स गुड फॉर यू। एग्जीक्यूशन में अगर आप हैं तो उसके लिए भी डिजाइन पर्सन मांगा जाता है कि डिजाइनिंग में अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको एटलीस्ट यू शुड नो हाउ दिस सिस्टम इज बिंग डिजाइन ओवर देयर, डक डिजाइनिंग कैसे करते हैं, पाइप डिजाइन कैसे करते हैं, हर चीज़ का। मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स बहुत अच्छा स्कोप है, लाइक योर कैरियर, ब्लू स्टार, वोल्टास, वेव्स, डाइकन, बहुत सारी कंपनीज हैं, हिटैची, बहुत सारी कंपनीज हैं कि जहाँ जिनका अपना मैन्युफैक्चरिंग है, जितने प्लांट्स हैं उनके अपने, तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। AMC, आफ्टर कंप्लीशन दिस HVAC इंस्टॉलेशन इन द बिल्डिंग, हम लोग उसके बाद AMC, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको मेंटेन करते हैं, लाइक ऑल द बिग बिल्डिंग्स, नॉट बिग बिल्डिंग्स,
बिगिनिंग फ्रॉम योर बुर्ज खलीफा टू आवर पार्लियामेंट, सारी जो बिल्डिंग्स है हर जगह मेंटेनेंस होता है, वहाँ पर बहुत सारे जॉब्स निकलते हैं मेंटेनेंस के लिए। हमारे जितने भी ऑफिसेस हैं, हमारे गूगल के ऑफिसेस हैं, हमारे लाइक इन दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, चेन्नई, जो बड़े ऑफिसेस हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेस, सब जगह क्या होता है कि हम लोग एनुअल एम्स ही होता है। और आजकल ये ऑटोमेशन सिस्टम एक्चुअली इसको चलाने के लिए, पूरी बिल्डिंग्स को चलाने के लिए ऑटोमेशन, दैट मीन्स बीएमएस सिस्टम। आजकल क्या होता है कि बीएमएस ये बड़ा ये यूज किया जाता है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि पूरी जो कंट्रोलिंग है, पूरी जो कंट्रोलिंग है वो एक एक सिंगल एक रूम होता है, रूम के अंदर हम लोग मैनेज करते हैं। So through different softwares we run all the chillers, we can stop, we can start, we can if there is any troubleshoot, if troubleshoot is required, तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्क्रीन पर शो कर देता है। तो इस तरीके से जितना भी कंट्रोलिंग है फॉर दैट एंटायर बिल्डिंग वी माइट मैनेज फ्रॉम ए सिंगल सिटिंग, एंड दैट रूम, दैट सिस्टम इज कॉल्ड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, योर क्वालिटी कंट्रोल इससे कर सकते हैं। कमीशनिंग, project management, engineering, tendering, budgeting, and BOQ, BOM work order, no doubt, very integral part of the system. So इतना सारा स्कोप है हमारे पास एचवेक का। दोस्तों ये जर्नी लगभग हमारी 30 मॉड्यूल्स की रहेगी। हम लोग सब चीज़ें पढ़ेंगे, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि सब चीज़ें आपको क्लियर करने का। बट आफ्टर दैट ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, लाइक आई टोल्ड यू ऑलरेडी, you can comment, you can like, you can write me even personally also. That's better if you ask all these queries through comments, so I will try to give the answers all of your queries. Next is, what are applications of HVAC system? Okay, कहाँ कहाँ पर हम इस सिस्टम को यूज करते हैं? एप्लीकेशंस, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर में जैसे कि हमारा हॉस्पिटल्स हो गए, हमारे ऑपरेशन थिएटर्स हो गए, ओके, रेजिडेंस हो गए, हॉस्पिटल रेजिडेंस हो गए, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ लाइक और IITs और IIMs, all the big institutions, universities, engineering colleges, all kind of buildings. There is also in laboratories, pharmaceuticals industries, non-pharmaceutical industries, tall buildings, scrappers, आजकल तो सब जगह बन रही है, इवन नॉट इन द UAE ऑल्सो। KSA के अंदर बहुत सारी हाई टॉल बिल्डिंग्स बन रही हैं, इंडिया के अंदर बन रही हैं, सिंगापुर, everywhere almost. Hotels, places of assembly, nuclear facilities, commercial and public buildings. Okay, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच टू गिव योर प्रीशियस टाइम फॉर दिस वीडियो। मैं उम्मीद करूँगा, मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती थी कि सर जो वीडियो है वो मिक्स होनी चाहिए, दैट शुड नॉट बी कम्प्लीटेड इन इंग्लिश ओनली। मैंने कोशिश किया है कि इसको हिंदी इंग्लिश दोनों के, टेक्निकल डिजाइनिंग के लिए लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस स्टेटमेंट, सो डोंट गो ऑन दैट, डोंट वरी। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा जितना हो सकता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद जल्दी ही दूसरा जो मॉड्यूल है जहाँ से एक्चुअल हमारा HVAC सिस्टम स्टार्ट होगा, तो हम लोग उसको स्टडी करेंगे। नॉट ओनली स्टडी, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू दैट वी विल एनालिसिस ऑन all the operations, all the parameters of HVAC system, the complete PhD of HVAC. That is the slogan of my this channel also, isme. So thank you so much.